There's a shift happening in the market right now that most people have no idea about. And if you catch it early, you can make a lot of money even if you're a complete beginner. Here's what's happening. There are millions of e-commerce brands selling products online right now. These brands basically need to create new ads consistently to see what actually works for them. The problem is that hiring influencers has become too expensive and way too slow. One influencer might charge you $2,000 for a single video, and if that video doesn't work, then that $2,000 is pretty much down the drain. So brands basically now have a problem. They need to basically test 10, 20, 30 different creatives every single month to see what actually sells their product. But they can't afford to pay real people $2,000 for each test. It's too expensive, it's too slow, and most of these ads won't even work anyway. That is where you come in. You can now learn how to create AI influencers. These are basically fake people that actually look quite a lot real. And these AI influencers can make unlimited videos for these brands. There's no expensive influencer fees, and you don't have to wait for someone to come and record you. It's just you and some AI tools and a simple process. And brands will pay you anywhere between $2,500 to $8,000 every single month for you to do this process for them. Because you're solving a massive problem. You're giving them the ability to test ads at scale without them going broke. Now you might be thinking that I don't know anything about AI, I don't know how to edit videos, and I'm not personally that much of a technical person. That's perfect, because this video assumes that you know absolutely nothing. I'm going to show you the complete process step by step. So how to write the script, how to create the AI person, how to make them talk, how to turn it into a finished ad. I will teach you absolutely everything. By the end of this video, you'll understand exactly how this works and how you can do it for yourself. So let's get right into it. तो पहली चीज़ जो आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि पहले जो ये इन्फ्लुएंसर्स के साथ ई-कॉमर्स ब्रांड्स डील करते होते थे, इसके अंदर मेनली प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम ये होती थी कि लेट्स से कि फॉर एग्जांपल एक इन्फ्लुएंसर है जिसके लाख फॉलोअर्स हैं, तो वो मोस्टली समवेयर अराउंड 150 to 200,000 रुपीज़ पर सिंगल क्रिएटिव दैट दे यूज टू क्रिएट फॉर दीज ई-कॉमर्स ब्रांड्स, यानी कि एक रील बनाने के वो इतने ज़्यादा पैसे चार्ज करते थे. समटाइम्स वन रील अलॉन्ग विद वन स्टोरी. So they would mostly charge somewhere around 2 lakh rupees for just one simple project. And इतने ज़्यादा स्पेंड करने के, अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंसर है तो फिर ये ब्रांड्स को जो है वो ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते थे. एंड ऑल दे यूज टू गेट इन रिटर्न was 1 to 2 pieces of content. Plus there was no ownership either, यानी कि you don't own that content, right? As the brand, you don't own that content. The influencer owns that content, right? And then there's no control, so they post what they want. And there was a scheduling nightmare as well, कि for example एक influencer कहता है कि यार मैं आज रात 8 बजे नहीं लगा सकता रील, मैं भाई वेंसडे को लगाऊंगा, ठीक है? These were all problems that these e-commerce brands used to face. And एक जो फंडामेंटल मैं हर वक्त अपनी वीडियोस के अंदर बोलता हूँ वो ये कि बिजनेस फंडामेंटली इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि देखो इस वक्त मार्केट के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं स्पेसिफिकली ई-कॉमर्स ब्रांड्स के लिए, कि दे आर स्पेंडिंग दिस मच मनी पर क्रिएटिव व्हेन दे नीड more and more creatives every single month in order to test ads at scale, so that they can scale their campaigns, so that they can scale their brand. And especially after the Andromeda update as well, they need to load their campaigns with a ton of creatives. And if they have to like invest money out of their pocket into influencers every single time they need a creative, that's just really cumbersome for them, right? तो इस वजह से आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि these are all problems that e-commerce brands are facing. So the AI solution is कि you can now create unlimited content using the help of AI. You get 100% brand ownership, right? Because it's just a fake person, so you 100% own them, right? And then there is complete creative control as well. So you control what the AI person says, how they say it. There's no scheduling conflict. So once you have the creative with you, जब आपके पास reel आ जाती है, तो you control when you want to post that post. Then there are no contract negotiations either. I've personally been part of these negotiations when brands offer me money in order to make videos for them. So I know how cumbersome these negotiations become. And as a result of this, if you actually learn the skill, you can charge $2,500 to $8,000 plus in monthly retainers, $8,000 plus when you actually start getting good. So don't expect कि आप ये start करोगे and कल से आप $8,000 के retainer charge करने लग जाओगे. That's not realistic. But generally जो है वो you can easily start with $2,500 retainers with foreign clients very, very easily. So इसके अंदर exactly ये पूरा प्रोसेस है क्या. I'll be breaking it down in full for you guys, so make sure कि you watch till the end. And at the end of the video मैं आप लोगों को एक गिफ्ट भी दूंगा.
तो फेज़ नंबर 1 इज़ बेसिकली स्क्रिप्ट क्रिएशन. सो फर्स्ट जो है वो आपने थोड़ी सी फाउंडेशंस को सेट करना है. यू हैव टू क्रिएट द स्क्रिप्ट विच यू आर गोइंग टू यूज़ इन ऑर्डर टू यू नो यू गोइंग टू गिव दैट स्क्रिप्ट टू योर AI avatar एंड दैट AI avatar इज़ गोइंग टू स्पीक दैट स्क्रिप्ट इनटू द कैमरा. तो आप ये स्क्रिप्ट एक्जैक्टली कैसे क्रिएट करते हो, हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो ये इस वक्त AI टूल्स हैं, ये जो वीडियोस जनरेट करके दे रहे होते हैं, ये 10 सेकंड्स के क्लिप्स जनरेट करके दे रहे होते हैं. दैट्स इट. सो यू कांट रियली क्रिएट द होल एड इन वन गो. आपको जो है वो 10-10 सेकंड के क्लिप्स जनरेट करवा के फिर उन्हें जोड़ना पड़ता है. कैसे जोड़ना पड़ता है, कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, सब चीज़ें बताऊंगा. बट जनरली जो पहली बात आपने याद रखनी है वो ये है कि अपनी स्क्रिप्ट की हर लाइन जो है वो मैक्सिमम 8 to 10 सेकंड्स की रखनी है. दैट इज़ इट. एंड यू गोइंग टू बी गिविंग दिस एज ए प्रॉम्प्ट टू क्लॉड और ChatGPT, वट एवर राइटिंग मॉडल दैट यू यूजिंग इन ऑर्डर टू जनरेट द स्क्रिप्ट, कि every line should be 8 seconds long. सही है. तो 8 second rule means कि each line which your AI influencer is delivering must be maximum 8 seconds when spoken. Now this is non-negotiable. ठीक है. एक तो attention span की बात भी है कि we want to make it super light and super crisp in terms of the video that's being delivered. और उसके अलावा ये भी है कि AI tools इस वक्त 10 seconds से ज़्यादा की वीडियो at one time नहीं जनरेट कर सकते. तो स्क्रिप्टिंग के लिए exactly कौन से आपने टूल्स यूज़ करने, you have to use 3 things in particular. So 2 of them are tools and 1 of them is Meta Ads Library. तो आप जो है वो प्राइमरी राइटिंग मॉडल जो यूज़ करते हो दैट इज़ Claude. ठीक है. एंड इसको आप यूज़ करते हो फॉर योर स्क्रिप्ट राइटिंग. यू यूज़ Gemini फॉर योर प्रोडक्ट रिसर्च. एंड प्रोडक्ट रिसर्च आप 3 स्टेप प्रोडक्ट रिसर्च करते हो जिसके अंदर आप जिस भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे हो, ठीक है, जिस भी ब्रांड के लिए एडवर्टाइज़ कर रहे हो, आप उनकी प्रोडक्ट के एग्जैक्ट निकालते हो कि यार इसके आइडियल पर्सोनास कौन से हैं जो हम लोग टारगेट करें, आइडियल एवटार क्या है, व्हाट आर द गोल्स, पेन्स, फियर्स एंड डिज़ायर्स दैट द आइडियल एवटार इज़ फेसिंग. सो एज एन एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स जस्ट से कि फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड है इटर्नल के नाम से. ठीक है. सो व्हाट वी बेसिकली सेल इज़ वी सेल टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स. सही है. अब ये टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स हम लोगों ने सेल करनी है. हमारे आइडियल एवटार्स आर जनरली पीपल हु आर बेस्ड इन मेजर सिटीज़ बिकॉज आवर प्रोडक्ट इज़न्ट चीप. Based in major cities and who have a problem कि either they have stained teeth या फिर वो एक ज़रा सा ग्लो अप चाहते हैं फॉर वेडिंग दैट्स कमिंग अप, फॉर अ फोटोशूट दैट्स कमिंग अप. तो वी आइडियली वांट टू बी टारगेटिंग दीज पीपल हु आर बेस्ड इन मेजर सिटीज़ एंड हु कैन अफोर्ड आवर प्रोडक्ट. तो हम लोग जो है वो फिर अपनी आइडियल एवटार की शीट बनाते हैं. हम लोग अपने आइडियल एवटार के गोल्स, पेन्स, फियर्स एंड डिज़ायर्स को लर्न करते हैं. एंड दिस इज़ एवरीथिंग दैट वी डू यूजिंग द हेल्प ऑफ Gemini. सो यू बेसिकली यूज Gemini टू डू योर रिसर्च. यू यूज़ Claude एज योर प्राइमरी राइटिंग मॉडल. एंड आप मेटा एड्स लाइब्रेरी के ऊपर जाके देखते हो कि आपके कंपेटिटर्स, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अब ये ब्रांड है इटर्नल. सही है. अब हमारे जो भी मेन मार्केट के अंदर कंपेटिटर्स होंगे, हम लोग उनको एनालाइज करेंगे कि व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ दैट्स वर्किंग फॉर देम, एंड विल ट्राई टू रिवर्स इंजीनियर दैट प्रोसेस बिकॉज द की विद मार्केटिंग is that you don't have to reinvent the wheel. Okay, all you have to do is analyze कि मार्केट के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, सबसे ज़्यादा कौन से एंगल्स चल रहे हैं, एंड बेसिकली जस्ट रिवर्स इंजीनियर दोज पैटर्न्स. आई एम नॉट सेइंग यू टेलिंग यू टू लाइक डाउन राइट कॉपी देम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन द वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज कि मार्केट के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा कौन से एंगल्स चल रहे हैं एंड बेसिकली जस्ट रिवर्स इंजीनियर दोज. तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं. ठीक है. सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने पैटर्न एक्सट्रैक्शन करनी है. सो यू बेसिकली गो टू facebook.com/ads/library. सो यू गो टू Meta Ads Library. आप उसके अंदर जाके एक्टिव एड्स देखते हो एंड देन यू सर्च योर प्रोडक्ट कैटेगरी और योर कंपेटिटर्स. ठीक है. एंड आप अपने कंपेटिटर्स, फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट के लिए जो भी कंपेटिटर्स होंगे, मैं जाके देखूंगा कि उनका ओपनिंग हुक स्ट्रक्चर वो क्या यूज़ करें. वो अपनी वीडियोस के अंदर पहले 3 सेकंड्स के अंदर ऐसी कौन सी बात बोल रहे हैं जिसकी वजह से जो आइडियल कस्टमर है उसकी अटेंशन जो है वो उसके ऊपर रुक रही है. अब एक बात हमेशा याद रखना कि जनरली एक ऐड जो 1 महीने से ज़्यादा टाइम से चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा होगा बिकॉज दैट एड इज़ वर्किंग, बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू स्पेंड मनी ऑन एन एड दैट्स नॉट वर्किंग. तो जनरली ये बात याद रखना कि ये वाले एड्स जो है वो ज़्यादातर वर्किंग में होते हैं एंड दीज आर एड्स दैट यू कैन रिवर्स इंजीनियर. डू नॉट ट्राई टू रिवर्स इंजीनियर एड जो अभी 1-2 दिन पहले लाइव हुआ है बिकॉज यू कैन नॉट टेल इफ दैट्स एक्चुअली वर्किंग ऑन और नॉट. वो अभी टेस्टिंग फेज़ के अंदर होता है. तो देन यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फ्रेमवर्क्स क्या यूज़ हो रहे हैं, कौन से मेथड्स यूज़ हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारी प्रोडक्ट के लिए ऑब्जेक्शंस ये आ सकती हैं कि भाई एनामल सेफ़ है कि नहीं है, रिजल्ट्स कब तक रहेंगे. मतलब ये वाली सारी चीज़ें हम लोग अपने एड क्रिएटिव्स के अंदर ही एड्रेस कर देते हैं कि इट इज़ एनामल सेफ़, प्लस जो है वो रिजल्ट्स जो है वो एटलीस्ट 6 months के लिए रहते हैं. तो दीज आर ऑल ऑब्जेक्शंस दैट वी ऑलरेडी हैंडल इन आवर स्क्रिप्ट्स एंड योर कंपेटिटर्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी डूइंग दिस इन देयर स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स. एंड देन देखो कि वो कौन सा CTA फॉर्मेट यूज़ करें, कौन सा वो कॉल टू एक्शन एट द एंड ऑफ द वीडियो दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं कि आवर स्टॉक इज एंडिंग रियली सून, जस्ट क्लिक द बटन अराउंड दिस वीडियो एंड ऑर्डर योर्स नाउ बिफोर वी सेल आउट. So you don't copy this, but you basically extract the pattern. And then your step 2 is to do a Gemini research. यानी Gemini के ऊपर जाके अपनी प्रोडक्ट
डालो एंड उसकी जो है वो डीप रिसर्च करो, ट्राई टू वो डीप रिसर्च वाले टूल को ऑन करो एंड डू डीप रिसर्च ऑफ योर प्रोडक्ट। इसके अंदर आपने बेसिकली 3 स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जनरेट करवाने हैं। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज द गोल्स, पेन्स, फेयर्स एंड डिज़ायर्स ऑफ योर आइडियल कस्टमर्स। सेकेंड इज़ योर परसोना शीट, यानी कि कौन से आइडियल परसोनाज है जिन्हें आप टारगेट कर रहे हो, एंड योर आइडियल क्लाइंट एवटार शीट। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को जनरेट करवा के आप अपने प्राइमरी राइटिंग मॉडल यानी क्लॉड के प्रोजेक्ट के अंदर इन फाइल्स को एज TXT फाइल्स ऐड कर देते हो एंड देन उस क्लॉड प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो अपनी स्क्रिप्ट जनरेशन करवाते हो, ठीक है। तो ये एक प्रॉम्प्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर जेमिनी रिसर्च, बट आई वुड रेकमेंड कि ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं ये ज़रूर जनरेट करवाना। दिस विल हेल्प यू अ टन एंड इट विल हेल्प यू राइट दैट स्किन पियर्सिंग काइंड ऑफ कॉपी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर हाई कन्वर्टिंग एड क्रिएटिव्स। Then you basically use Claude as your primary writing model in order to write these scripts. तो आपके सामने इस वक्त एक prompt आ रही है कि I am creating an AI influencer video ad for Eternal, which is a teeth whitening strip brand. Target audience is 20 to 35-year-old males and females based in major cities. Write a 30-second video ad script where each line is max 8 seconds when spoken naturally. Structure is hook, pattern interrupting hook. Then problem, call out the frustration that the ideal customer is facing. Then solution, so introduce the product as a solution to that specific problem. Then proof, यानी कि what makes it different. हमारी product के अंदर for example हम लोगों ने बहुत अच्छे results भी generate किए हैं for our customers, so we could use those results as proof for our product which actually does work. And then we give a call to action. So call to action would be click the button around this video and order yours now before we run out. So make it conversational, like a real person talking to a friend and not a corporate ad. The main thing with social media right now and specifically with ads as well is कि जितना ज़्यादा आप उसे humanize कर सकते हो and जितना ज़्यादा आप उसको इस तरह दिखा सकते हो कि it's not really an ad, it's just a person talking to a screen organically, those kinds of ads generally tend to work the best. So this is the format which you'll be using for your ads. So this is basically a 3-step process which you're going to be using for your script generation. So once you have your script ready, what is the next process? Next process is कि आप avatar create करते हो। तो आपका जो AI avatar होता है उसको आप create करते हो। मैं आपको कुछ examples जो है वो I'll tell my editor to have some examples on the screen right now. तो आप जो है वो avatars create करते हो, ठीक है। These are you create multiple different kinds of avatars, not just one, so that you have one for every single kind of use case. For example, let's say कि आप इस तरह की product अगर आप advertise कर रहे हो तो you would probably use like a female influencer in her early 20s to advertise this product because that would be the most appropriate. या फिर you would have a male influencer in his early 20s as well. You won't really have someone, let's say, with a proper sweater and with like in his 40s or in his 50s advertising this product, because that won't be the most appropriate thing in the world, because we want to appeal to young people. सही है। तो हम लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस बनाते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूज़ केसेस। अब फॉर एग्जांपल हम एक ऐसे बैक मसाजर की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जो बैक पेन ख़त्म करता है, तो इन दैट केस विल बी यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ मोर मैच्योर एवटार, अ लिटिल बिट ऑफ एन ओल्डर पर्सन, बट you have to make sure कि you have different variations जो आप यूज़ कर सकते हो for different kinds of use cases for different kinds of products. सही है। So what tool do you exactly use in order to generate these avatars? Well, this is a free tool which you guys can use, and you guys are always complaining saying कि यार मतलब AI tools जो expensive होते हैं and all of that stuff. Well, they don't have to be expensive. You can use these free tools as well, such as Flow by Google. You can go ahead and use this, and इसके अंदर जो है वो specifically image generation के अंदर के लिए जो है वो आप Nano Banana Pro use कर रहे होगे, and then to basically animate these images you will be using VO3. तो आपको जो है वो इन AI avatars के लिए जो है वो 11 prompts मैं आपको दे रहा हूँ at the end of the video, जिसके अंदर different kinds of use cases के लिए मैंने खुद प्रॉपर किस्म की prompts जो है वो लिखी हुई हैं जो बहुत अच्छे किस्म के AI avatars जनरेट करके देती हैं, जिस तरह मैंने आपको earlier इस वीडियो के अंदर दिखाया भी। तो आपको जो है वो ये वाली prompts at the end of the video मिल रही होंगी, so don't worry about that. So pro tips for consistency are कि you have to be specific about the AI avatar that you're generating. सही है। तो हमेशा ये बात याद रखना कि पहले आपने स्क्रिप्ट जनरेट की, ठीक है, स्क्रिप्ट जनरेट की और उसके अलावा रिसर्च की, उसके अलावा आपने अपना उसके बाद AI एवटार बनाया, सो द पिक्चर ऑफ द पर्सन दैट यू आर गोइंग टू बी एनिमेटिंग, एंड देन उसके बाद आपने उसे एनिमेट करना है, देन आपने उसको एडिट करना है, एंड देन अपना फिनिश्ड एड बना लेना। दिस इज द एंटायर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. सो प्रो टिप्स फॉर कंसिस्टेंसी व्हेन यू आर जनरेटिंग दीज AI avatars is be specific. So keep prompts very specific in terms of the ethnicity. Is the person American? Is the person Danish? Is the person Pakistani? Is the person Indian? What is the age of the person? Are they middle-aged? Are they young? Are they a little bit more on the older side? What is this
स्टाइल, यानी कि किस स्टाइल से वो कम्युनिकेट करती हैं, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ क्लोथिंग दैट दे वेयरिंग, आर दे वेयरिंग कल्चरल ड्रेसिंग, आर दे वेयरिंग वेस्टर्न ड्रेसिंग. You have to be really specific with these things and then maintain consistency. So use identical descriptor language across all 11 of your AI avatars. And again, you'll be getting the prompts for all of these AI avatars, 11 AI avatars that I give to my students inside of AI Accelerator. At the end of the video, you're going to be getting all of those. So then save your templates. So save your base prompt templates and then test demographics. Test multiple ethnicities for different demographics. So as an example, मैंने जिस तरह आपको बताया कि अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हो या फिर एक इस तरह की प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइज कर रहे हो जो इस तरह की प्रोडक्ट है लाइक इटर्नल, तो इस केस के अंदर यू विल बी यूजिंग समवन यंग. इफ़ यू आर यूजिंग अ प्रोडक्ट लाइक a product that solves a problem such as back pain, such as knee pain, you will be using more mature kinds of characters. सो देन योर नेक्स्ट फेज इज़ वीडियो जनरेशन बेसिकली. अब इसके अंदर आपके पास दो पाथ्स हैं, एक पाथ फ्री और एक पाथ पेड है. तो मैं आपको दोनों ऑप्शंस दे रहा हूँ. पहली ऑप्शन ये है कि यू कैन यूज़ फ्लो, यानी VO3 इनसाइड ऑफ फ्लो. सो द मेन मॉडल दैट यू गोइंग टू बी यूजिंग इज़ VO3 इनसाइड ऑफ फ्लो इफ़ यू वांट टू डू दिस फ्री. ठीक है, तो अब इस केस के अंदर जो है वो आप VO3 किस केसेस के अंदर यूज़ करते हो. नाउ दिस इज़ बेस्ट फॉर टेस्टिंग, फॉर बजट क्लाइंट्स एंड फॉर यू टू बिल्ड अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फर्स्ट. सही है, तो इसके अंदर आप क्या करते हो, आपने जो AI एवटार जनरेट किया था ना, जिसकी प्रॉम्प्ट्स मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो दूंगा, वो प्रॉम्प्ट्स को उठा के फ्लो को देना, नैनो बनाना प्रो की मदद से जो है वो एवटार्स को जनरेट करना. और उसके बाद जो है व्हाट यू बेसिकली डू इज यू टेक दैट इमेज, यूज द सेटिंग विच इज इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो इनसाइड ऑफ द वीडियो जनरेशन टूल इनसाइड ऑफ फ्लो. उसके अंदर जो है वो आप प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर सिंपली लिखते हो कि ऑडियो सेमी कोलन, और उसके अंदर जो है वो आप अपनी पहली लाइन जो आपकी स्क्रिप्ट की है वो आप लिख देते हो. ठीक है, उसके बाद आप जनरेट को क्लिक कर देते हो एंड यू वेट फॉर इट टू प्रोसेस. एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि आपका पहला क्लिप जो है वो जनरेट हो जाता है. अब इफ़ यू वांट टू मेंटेन कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, तो व्हाट यू गोइंग टू डू इज वंस यू हैव दैट वीडियो, उसके टॉप के ऊपर जो है वो एक बटन बना हुआ आ रहा होगा एक्सटेंड का. उस एक्सटेंड के बटन को आपने क्लिक करना है. देन यू विल जनरेट योर नेक्स्ट सीन. Now you will be doing this all inside of Scene Builder inside of Flow. ठीक है, this is a very simple process. So then what you're going to be doing is then adding the second line of your script into the prompt box, and then you repeat this for all lines, and then you basically have your finished video or your first draft जिसको आप उठा रहे होगे and then जैसे आप edit कर रहे होगे. edit कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा. Your second option is a paid option. इसके अंदर जो है वो आप एक tool यूज़ कर रहे होगे which is called Higgsfield, और Higgsfield के अंदर जो आप primary model यूज़ कर रहे होगे it is called Kling 2.6. अब ये जो है वो एक पेड टूल है. ठीक है, इसके अंदर जो है वो यू कैन यूज़ दिस फॉर प्रीमियम क्लाइंट्स, यानी कि जब आपने फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर लिया, लेट्स से आपने $2,500 के एक क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर लिया, उससे आपने पेमेंट ले लिया, तो आप उस पेमेंट के अंदर से ही अपने टूल के पैसे निकाल सकते हो. यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी, बाय समथिंग लाइक Higgsfield, एंड इवन द टॉप ऑफ द लाइन प्लान इनसाइड ऑफ Higgsfield, एंड दैट रियली वोंट हर्ट यू बिकॉज इसके अंदर बेसिकली 3 प्लान होते हैं. एक आई थिंक $39 अ मंथ का होता है, एक $100 अ मंथ का होता है. बट आई वुड रेकमेंड कि फॉर द बेस्ट वीडियो जनरेशंस यूज़ Higgsfield. ओके, इसके अंदर भी वर्क फ्लो स्टेप्स आर प्रीटी मच वेरी सिमिलर. पहले आप Higgsfield AI के ऊपर साइन अप करते हो. आई मेक श्योर कि आई ड्रॉप अ लिंक फॉर Higgsfield AI डाउन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. एंड योर स्टेप 2 इज टू सेलेक्ट Kling 2.6 as your model, and then you basically upload your avatar. So आपने जो prompts की मदद से AI avatars generate किए थे ना, तस्वीरें AI avatars की generate की थी, आप उन्हें basically drop कर देते हो inside of Higgsfield, and then उसके बाद आप ये prompt structure use करते हो कि audio semicolon and आगे जो है वो आप अपनी script की पहली line डाल देते हो, very similar to how we did it with Flow as well. and आप नीचे बस लिख देते हो natural lip sync and subtle head movements. okay, एनिमेशन के लिए जो है वो Kling इज़ प्रीटी मच द बेस्ट मॉडल आउट देयर राइट नाउ. सही है, बहुत एक्यूरेट किस्म की लिप सिंकिंग करता है, बहुत अच्छी किस्म की ऑडियो जनरेशन करता है, बहुत फिट किस्म की लाइक रियलिस्टिक किस्म की वीडियोस जनरेट कर रहा होता है. एंड देन वंस यू हैव दीज क्लिप्स यू बेसिकली जनरेट दैम, यू डाउनलोड दैम, एंड यू नो उसके बाद आप नेक्स्ट एवटार अपलोड करते हो एंड देन यू गेट अनदर एड जनरेटेड. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रीमलाइंड. सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी. अगर फिर भी नहीं समझ आती तो जस्ट drop a comment down in the comment box and I'll make sure I address it for you personally. Then a pro tip is कि use extend feature when specifically when you're using Flow. तो extend feature को ज़रूर यूज़ करना अगर आप separate clips generate करोगे जहाँ पे आप दोबारा AI avatar की pictures अलहदा से upload करके उसके बाद audio generate कर रहे हो, उसके अंदर आपकी character consistency नहीं रहेगी. सही है, make sure to use the extend feature. okay. So an example workflow could be कि let's say कि एक स्किन केयर
प्रोडक्ट का हम लोग ऐड बना रहे हैं, सही है। सो इसके अंदर पहला क्लिप वुड बी, उसके अंदर जो ऑडियो यूज़ हो रही होगी इट वुड बी टायर्ड ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट प्रॉमिस रिजल्ट्स बट लीव योर स्किन वर्स। तो आप क्या करोगे कि आप सिंपली अपने AI एवटार की तस्वीर फ्लो के अंदर अपलोड करोगे, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो की ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे जो है वो ये वाली लाइन डाल दोगे, ऑडियो सेमीकोलन एंड आगे आपकी जो भी स्क्रिप्ट की लाइन है, एंड देन यू वुड बेसिकली एक्सटेंड दैट क्लिप, सही है। आप एक्सटेंड के फीचर को यूज़ करोगे एंड देन आप अपनी स्क्रिप्ट की सेकंड लाइन ऐड करोगे, थर्ड लाइन ऐड करोगे, फोर्थ लाइन ऐड करोगे, फिफ्थ लाइन ऐड करोगे, एंड आपका पूरे ऐड का ड्राफ्ट जो है वो बन के आपके पास आ जाएगा। यू विल बेसिकली टेक दिस ड्राफ्ट and you will then edit it. The question is, when do you use which tool? So use Higgsfield if client budget is above $3,000, if complex actions are required, if detailed facial expressions or nuanced performance is needed, and if high-end premium output is expected. सही है, अगर आप किसी client के साथ काम कर रहे हो जो आपको high ticket retainer दे रहा है, 110% use Higgsfield. It is the best. Kling inside of there is pretty much the best. And उसके अलावा भी आपको Higgsfield के अंदर countless किस्म के features मिल जाते हैं. उसके अलावा you can also use Flow if let's say the client is budget focused and if the client is Pakistani and you are testing ideas or building a proof of concept and you want the simple talking head style video and that is enough for you, and you know if you're using this tool your cost is going to pretty much stay at zero. I'm also going to give you a little bit of a pro tip, and that is कि let's say if you're a student, सही है, तो what you can do is you can go ahead and grab Gemini's student plan and उसकी मदद से जो है वो आपको जो Google Workspace है वो फ्री में मिल जाती है अगर आप सिर्फ अपने प्रूफ ऑफ यू बीइंग अ स्टूडेंट शो कर देते हो, एंड इफ़ यू शो दैट तो आपको वर्क स्पेस की सब्सक्रिप्शन भी मिल जाती है और उसके अलावा आपको फ्लो की भी एक्सटेंडेड एक्सेस मिल जाती है और भी ज़्यादा उसके ऊपर क्रेडिट्स मिल जाते हैं. सो नाउ व्हेन यू हैव योर एंटायर वीडियो रेडी, हाउ डू यू एग्जैक्टली एडिट इट? You can use tools like CapCut, you can use tools like Instagram Edits app, you can use tools like DaVinci Resolve and Premiere Pro. Okay, I'm not going to sit here and do a complete editing tutorial for you, say because that's going to make this video way too long. But one app that I've been really personally using myself, because most of my videos are edited by my video editing team, but sometimes when I want to create videos on the fly on Instagram, what I do is I use the Instagram Edits app, and this is pretty much one of the most simplest apps that you can use and use it to like create pretty good looking videos. So I would really recommend if you're a beginner go for Instagram Edits app or for CapCut as well, and इसकी मदद से भी जो है वो आप क्लाइंट्स को डिसेंट रिजल्ट्स जनरेट करके दे सकते हो. आजकल के टाइम के अंदर वैसी स्पेसिफिकली जो UGC टेस्टिमोनियल्स की वीडियोस होती हैं उसके अंदर ज़्यादा डिमांड इसी चीज़ की होती है कि ज़्यादा नेचुरल लुकिंग एड्स चाहिए होते हैं. तो एज़ वी गो ऑन इन 2026 आई डोंट थिंक कि बहुत हाईली एडिटेड किस्म की वीडियोस जो है वो बहुत ज़्यादा चलती हैं स्पेसिफिकली आजकल की मार्केट के अंदर. सो यू डोंट रियली नीड टू लर्न दीज टूल्स एंड दीज सॉफ्टवेयर्स ईदर. यू कैन सिंपली यूज दीज सिंपल सॉफ्टवेयर्स एंड यूज इट टू जनरेट अ प्रीटी डिसेंट रिजल्ट. सो फाइनली दिस इज़ योर असेंबली चेकलिस्ट. सो यू इम्पोर्ट क्लिप्स इन ऑर्डर, यू ऐड ट्रांजिशंस, ठीक है, आप कैप्शंस ऐड करते हो बिकॉज 85% पीपल वॉच विदाउट साउंड, तो आपने कैप्शंस लिख देने नीचे, मतलब यानी चिन के नीचे जिस तरह कैप्शंस आ रहे होते हैं, एंड देन यू बेसिकली कलर ग्रेड इट. सो यू नो फिक्स एनी कलर वेरिएशन बिटवीन क्लिप्स, आप फिल्टर्स की मदद से थोड़ा सा कलर करेक्ट कर लेते हो, देन यू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ अ सटल बैकग्राउंड म्यूजिक एंड देन यू बेसिकली एक्सपोर्ट योर वीडियो. सो व्हाट यू सेंड टू द क्लाइंट इज 5 to 10 video variations. Even more than that, you can create even 20 video variations every single month. Raw files if they requested, caption file, ठीक है, उसके बाद usage rights का document which you know isn't really needed but you can give it to them regardless so that they have this you know उनका दिल इस बात पे easy है कि yes they can use it on ads. and उसके अलावा एक brand asset kit as well. Do not do this. Do not create random avatars without demographic research. You have to make sure कि जिस तरह मैंने आपको earlier in the video बताया कि आपने ये चीज़ make sure करनी है कि आप जिस product को advertise कर रहे हो आप अपने AI avatar को उससे relevant बनाओ. अब for example अगर ये product है इसके अंदर आप जो है वो किसी बूढ़े AI avatar की मदद से एडवर्टाइज कर रहे हो तो इट वुडंट रियली मेक अ लॉट ऑफ सेंस. सो यू हैव टू मेक श्योर कि एवटार यू नो मैचेस द टारगेट कस्टमर इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ स्टाइल. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये प्रोडक्ट एडवर्टाइज करनी है तो आई वुड यूज़ अ यंग पर्सन वेयरिंग मॉडर्न एथनिक काइंड ऑफ क्लोथिंग. सही है. देन डोंट मेक योर स्क्रिप्ट्स वे टू लॉन्ग. ओके, एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि AI एवटार्स जो है वो थोड़ा सा स्लो बोलते हैं. तो जब आपकी वीडियो जनरेट होगी, आप जब उसे एडिट कर रहे होगे, जस्ट स्पीड योर क्लिप्स अप बाय 1.1x और 1.2x. ओके, एंड उसके अलावा अपनी स्क्रिप्ट्स को बहुत लंबा ना रखो. Keep it between 30 to 50 seconds for your ad formats. That should be more than enough.
उसके अलावा ये है कि डू नॉट मेक दिस मिस्टेक कि यू डू नॉट राइट कैप्शंस, यू डू राइट कैप्शंस, ओके, एंड यू कैन बेसिकली like automatically generate this using the captions feature inside of the Instagram edits app. And always remember to always add captions, because 85% of people are scrolling through Instagram without any sound. And then don't overcomplicate motion, okay, make sure कि आप direct to camera POV रख रहे हो अपने AI avatar का, उसने हाथ में product पकड़ी हुई है, and you know that is going to convert if you keep it very very simple. And then test multiple avatars as well, you know, you have to make sure कि आप जो है वो अपनी specific product जो जिस भी client के लिए आप काम कर रहे हो उसके लिए जो है वो आप different किस्म के avatars test कर रहे हो, so that you can test कि कौन से एवटार्स जो है वो सबसे ज़्यादा कन्वर्जन ला के दे रहे हैं. हमेशा ये बात याद रखना कि ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर, स्पेसिफिकली एड्स के वर्ल्ड के अंदर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है. डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप एक ऐड बनाओगे और उसके बाद वो 100% कन्वर्ट हो जाएगा. दैट्स नॉट गोइंग टू एंड अप हैपनिंग. यू गोइंग टू टेस्ट अ लॉट ऑफ एड्स एट स्केल. सम ऑफ देम आर गोइंग टू बी विनर्स, यू गोइंग टू स्केल दोज, सम ऑफ देम आर जस्ट नॉट गोइंग टू वर्क एंड यू गोइंग टू लेट दोज गो. दैट इज़ हाउ द एड्स वर्ल्ड वर्क्स. You now know how to create AI ads for e-commerce brands now from start to finish. So script writing, avatar generation, video creation, final assembly, pretty much everything. Sadly, most people are going to watch this, they'll think this is interesting, and then they'll go back to doing nothing. They'll go back to scrolling, they'll watch another video, and they'll keep waiting for the perfect opportunity when this one sits right in front of them. But if you're different and if you're actually going to execute on this, you now have a skill that brands are actively paying thousands of dollars for. The opportunity is real and the demand is there. You just have to build one example and show it to the right people. Now here's what I want to know from you guys. Do you want me to create a second video where I show you exactly how to find these e-commerce brands who are willing to pay high ticket retainers for this service? Because knowing how to make these ads is one thing, but knowing how to sell them is what actually gets money into your bank account. So if you want me to post another video on client acquisition, just let me know by dropping a comment in the comment box. If enough of you ask for it, I'll make a super detailed guide for you. Also, I mentioned these 11 AI avatar generation prompts throughout this video. The ones my students use inside of AI Accelerator to create consistent and high quality AI avatars. If you want all 11 of these prompts, which are just simply copy and paste prompts, just message me the word prompt on Instagram. I'll send them straight to your DMs and उसके अंदर पूरा ad creation का process भी break down किया हुआ है और सारी prompts भी provide की हुई हैं. मैं अपने Instagram की link जो है वो description के अंदर drop कर दूंगा, तो just message me the word prompt and I will send it directly to you. But here's the thing, none of this matters if you don't actually do it. So just pick one product, write one script, create one video, create one finalized ad, and that is your homework for today. Do that right now, not next week, right now today. Because while everyone else is overthinking it, you will be landing your first line. At the end, remember that for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy, my friend. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.